राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत एक बार फिर काफी हंगामेदार रही। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। इस हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामा कर रहे सांसदों से शांति की अपील की। Honorable members, I am extremely pleased to extend birthday greetings to Shri Ghanshyam Tiwari ji, Honorable Member of Parliament. हंगामे के शांत होने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने बीजेपी के राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके राजनीतिक सफर का इस दौरान जिक्र भी किया। Honorable members, pleased to extend greetings to Honorable Member of Parliament, Shri Ghanshyam Tiwari. On his birthday, Shri Ghanshyam Tiwari, a distinguished member of this August House in July 2022, has extensive experience in public life, having served 6 terms in the Rajasthan Legislative Assembly between 1980 and 2018. He has held significant ministerial portfolios in the Rajasthan government, including energy, education, parliamentary affairs, food and civil supplies, and law and justice. राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान कई सांसदों ने लिस्टेड बिजनेस के तहत अपने प्रस्ताव को सदन में रखा, जिसमें प्रमुख गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रताप राव जाधव सहित कई सांसद रहे जिन्होंने अपना प्रस्ताव इस दौरान रखा। Papers to be laid on the table. Shri Gajendra Singh Shekhawat. With your permission, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 within brackets 1 in today's list of business. Thank you. Dr. Jitendra Singh. Rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 bracket 2 in today's revised list of business. Thank you. Shri Pratap Rao Jadhav. माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित प्रलेख सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned at serial number 2, class 4 of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. सदन के पटल पर प्रस्ताव रखे जाने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को संबोधित किया और बताया कि सदन के पास 4 नोटिस आए हैं, जिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सभापति जगदीप धनखड़ से विषय को लेकर सवाल किया, जिससे धनखड़ थोड़ा नाराज हो गए और उन्होंने विषय की जानकारी देने को लेकर थोड़ा समय देने की बात भी इस दौरान कही। I have received 4 notices under Rule 267. On numerous occasions, I have reflected. Subject क्या है sir? Subject जयराम जी इधर आ जाओ, इधर आकर बैठ जाओ। We want to know sir. Subject. Give me some time to speak the subject. I think I am too slow for him. Difficult for me to keep pace. इस दौरान जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें किन किन सांसदों की ओर से नोटिस मिले हैं और किस विषय पर नोटिस मिला है। साथ ही उन्होंने संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से ना चलने को लेकर भी अपना दुख प्रकट किया। Notice of Shri Sanjay Singh, Shri Randeep Singh Surjewala. Yes, sir. He is present, sir. Allow. Shall I start speaking? And Dr. John Britas. They demand
a discussion on a statement made by the Union Home Minister. Shri Ramjilal Suman demands discussion on protest by farmers. Honorable members would recall, and looking into the background for several decades, a discussion under Rule 267, and I reiterate, has been consensual when both the ruling and the opposition have agreed. And in asserting so, I take recourse to what has happened earlier. I had indicated that in last 3 decades, this discussion has not been in double digit. सभापति जगदीप धनखड़ के संबोधन के दौरान ही विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किए जाने लगा। इसे लेकर सभापति ने सांसदों से हंगामा ना करने की अपील की। इसके बावजूद सांसद नहीं माने और लगातार हंगामा करते रहे। इसे लेकर राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। We can't allow the country to be plunged in anarchy. Honorable members, we cannot allow the country to be plunged in anarchy. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई भी हंगामेदार रही और सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से अपील भी की और कहा कि मुझे अपने पूर्व साथी के निधन के बारे में सूचित करना है, कृपया आप शांत हो जाएं। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने पूर्व साथी के निधन के बारे में सूचित करना है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद के निधन पर शोक प्रकट किया और मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। श्री EVKS एलान गोवन तमिलनाडु के तत्कालीन गोबीचेट्टीपालयम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री एलान गोवन ने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री तथा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले वे तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री EVKS एल गोवन का निधन 14 दिसंबर 2024 को 75 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। हम अपने पूर्व साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। श्रद्धांजलि देने के बाद एक बार फिर सदन में हंगामा शुरू हुआ, जिसे देखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्हें भी अनुमान हो गया था कि सांसदों का यह हंगामा थमने वाला नहीं है। ओम शांति। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपको बता दें कि सदन के साथ साथ सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। इस दौरान सांसदों के बीच धक्का मुक्की की घटनाएं भी सामने आई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया।
जिसके बाद मैं नीचे गिरा। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया और वो मेरे ऊपर गिरा। धक्का मुक्की में 2 बीजेपी सांसदों के घायल होने के बाद राहुल गांधी दोनों सांसदों को देखने के लिए मौके पर गए, लेकिन बीजेपी की ओर से जमकर उनका विरोध किया गया, जिससे राहुल गांधी वहां से वापस ही लौट आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी ने धक्का मुक्की में घायल दोनों सांसदों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले में घायल सांसद मुकेश राजपूत से फोन के जरिए बात की और उन्हें किसी तरह की चिंता ना करने के लिए भी कहा। प्रणाम सर, मुकेश सर ठीक है, अभी छटके से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। इस घटना पर लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने बीजेपी के सांसदों पर संसद के अंदर जाने से रोकने का आरोप लगाया और यह घटना घटित होने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं हमेशा के नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे, उस दौरान ये सब कुछ हुआ। यह संसद का प्रवेश द्वार है और हमारा अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य द्वार ये हैं, वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के आचरण की निंदा की और सदन ही नहीं पूरे देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके की बातें की गई। आज पहले बार एनडीए के सांसदों ने वही गेट में प्रोटेस्ट किया मकर द्वार पे, तो राहुल गांधी को हमारे सांसदों के बीच में घुस करके वहां धक्का मुक्की करने का क्या जरूरत है? चोट पहुंचाया, अगर हम भी करते तो क्या हाल होता? हमारा इतना संख्या है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे? तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझें। और फिर जब लग गई, प्रताप चंद्र सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट आ गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। तो ऐसा कोई मकरदार उनकी जागीर है क्या? वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया और इस घटना के लिए बीजेपी सांसदों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी।
ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। Big tamasha. Actually, the BJP MPs blocked Rahul Gandhi while he going to the house. They purposefully blocked Rahul Gandhi. They stopped the way of Rahul, leader of opposition. We have already given a complaint to speaker directly. 75 वर्षों में जो नहीं हुआ, उस प्रकार का आपराधिक आचरण भाजपा के सांसदों द्वारा आज संसद की मर्यादाओं को तार तार करते हुए, भंगित करते हुए आज संसद के अंदर हुआ। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गिरिराज सिंह और अश्विनी वैष्णव ने भी पलटवार किया और कहा कि जिस तरह से संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के इतिहास को पूरे देश के सामने रखा गया है, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है और कांग्रेस सांसदों ने इस तरह के अशोभनीय हरकत को अंजाम दिया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कि अभद्र भी था, अशोभनीय भी था और अस्वीकार्य भी है। लोकतंत्र में हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो है शारीरिक रूप से इस तरह से किसी को चोट पहुंचाना नितांत अस्वीकार्य है, निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व का व्यवहार जो इसको लेकर के था, एक तरफ जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया, संविधान को बार बार कुचलने का षड्यंत्र किया। प्रताप सारंगी उड़ीसा के सांसद के साथ जो कांग्रेस के राहुल जी के लोगों ने धक्का मुक्की किया है, वो गिर गए, बेहोश हो गए और ये गुंडागर्दी होती है। कांग्रेस ने आज गुंडागर्दी की है। बाबा साहेब से तो माफी मांगना ही चाहिए, देश से माफी मांगना ही चाहिए, लेकिन ये गुंडागर्दी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे दो सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। एक तरफ जहां लोकसभा कुछ देर चलने के बाद ही हंगामे की भेंट चढ़ गई, वहीं राज्यसभा में बीजेपी सांसद फगनौन कोन्याक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से राहुल गांधी की शिकायत भी की। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did, his action today was really bad and I feel disheartened and no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter for which I have already served notice to you, sir. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की घटना को लेकर आक्रोश जाहिर किया और घटना की पुरजोर निंदा की। नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के दो और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास में नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं।
इस दौरान किरण रिजिजू ने सदन में मौजूद सभी कांग्रेस सांसदों से माफी की अपील की और कहा कि यह संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी की यह हरकत काफी शर्मनाक है। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी के जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर। इसलिए राहुल गांधी जी के व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ संसद से नहीं पूरा देश से माफी मांगना चाहिए सर। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने भी सदन को संबोधित किया और नेता विपक्ष राहुल गांधी के आचरण को लेकर कई तरह के सवाल उठाए और घटना की कड़ी निंदा की। आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आज संसद के मुख्य द्वार में भाजपा एनडीए सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था। राहुल गांधी और उनके सांसदों ने जबरदस्ती घुसकर अपना जो शारीरिक बल प्रदर्शन किया वो बहुत गलत है। संसद कोई शारीरिक ताकत दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को जोर से धक्का दिया। राहुल गांधी ने जो धक्का मुक्की की है उसका खंडन करता हूं। मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपनी ताकत दिखाकर मारपीट करने लग जाएंगे तो संसद चलेगी कैसे। यह लोकतंत्र का मंदिर है। हमारे दोनों सांसद गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को संबोधित किया और कहा कि मैंने फगनौन को न्याय की अपील दर्ज कर ली है। इस तरह की घटना काफी अशोभनीय और अविश्वसनीय है कि कोई सांसद इस तरीके की हरकत कर सकता है। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member parliament. I am looking into it. सदन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने इस घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। बीजेपी के आरोप पर डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने भी पलटवार किया और बीजेपी पर गलत आरोप लगाने की बात कही, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सांसद फगनौन कोन्याक के साथ घटित घटना का जिक्र किया, जिससे विपक्ष जोरदार हंगामा करने लगा और सभापति को संसद स्थगित करनी पड़ी। This is one side. This is the version of one side, sir. There was a demonstration going outside.
And Mr. Rahul Gandhi, the leader of opposition in the other house, What is your point is a of order? very senior person, and he has complained that he was only opposed. We respect All all I know lady is- members. We respect every One woman second. in this country. All sir. I know is Nothing has happened of honorable that, lady sir. member Nothing has happened of Sonia that, sir. has sought my We protection. respect women, sir. I have heard her. They don't respect even She Ambedkar. was We respect literally in women, tears. whether it's a member of parliament or anybody in this country. राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी ने आज भाजपा के 2 सांसदों को धक्का दिया जो अब अस्पताल में भर्ती है। राहुल गांधी के व्यवहार के लिए पूरी कांग्रेस को संसद और देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद कोई कुश्ती का मैदान नहीं है। बता दें कि इस घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है और प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी दोनों तरफ से की जा रही है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित किया और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। We have filed a complaint against Mr. Rahul Gandhi for physical assault and incitement. हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए, और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है। गौरतलब है कि एक बार फिर संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन संसद चलने के दौरान जो हंगामा सदन के बाहर और सदन के भीतर हुआ वो काफी निंदनीय है, जिसकी हम भी निंदा करते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वहीं दूसरा सवाल यह भी कि क्या आगामी सत्र एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? अगर हां तो इससे नुकसान किसका, जनता का या राजनेताओं का? प्रजा के पहरेदार में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।